کربلا کے بعد جب سب امام حسین کے ساتھی اور بھائی بیٹے بھتیجے شہید ہو گئے تو یزید اپنی فتح کے غرور میں دمشق کے دربار میں بیٹھا تھا۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا تھا اور اہل حرم کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کر دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ دربار امیروں، وزیروں اور شام کے درباریوں سے بھرا ہوا تھا اور یزید اپنی خوشی کے اظہار میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ ہاشم نے کھیل کھیلا تھا بادشاہت کا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی۔ یہ اشعار سن کر بی بی زینب علیہ السلام نے ساری دربار کو خاموش کرایا اور پھر کھڑے ہو کر بلند آواز میں فرمایا، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہم کو مثل اسیر دمشق لایا ہے؟ تو یہ تیری عظمت ہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے اقتدار مل گیا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلایا، رسول اللہ کے اہل بیت کو قیدی بنایا اور سر اقدس حسین کو نیزے پر بلند کیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری فتح ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیری رسوائی کی ابتدا ہے۔ اے زینب، یہ سلطنت اور خلافت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر میں نے تمہارے بھائی کو قتل کیا تو یہ میری طاقت نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اگر میں اللہ کو پسند نہ ہوتا تو آج یہاں بادشاہ نہ ہوتا۔ اے یزید، قسم ہے خدا کی تو نے ہمارا خون نہیں بہایا بلکہ اپنا ہی گریبان چاک کیا ہے۔ تو نے اپنی ہی بنیادیں کھوکھلی کر دی ہے۔ کیا تجھے رسول اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید، تو نے اسی سردار کو قتل کیا ہے اور اس کے اہل کو قیدی بنا کر دربار میں لایا ہے۔ تو اپنی داڑھی تھپ تھپاتا ہے اور لاٹھی سے حسین کے ہونٹوں کو مارتا ہے، جن ہونٹوں کو رسول اللہ نے بوسے دیے تھے۔ یاد رکھ، وقت قریب ہے کہ تو اپنی اعمال پر رونے لگے گا اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جو کچھ بھی کیا اپنے باپ دادا کی خلافت بچانے کے لیے کیا۔ حسین نے بغاوت کی اور بغاوت کرنے والوں کی سزا موت ہوتی۔ اے یزید، اللہ کی دی ہوئی حکومت کو ظلم و فسق و فجور نہ بنا۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر پکڑتا ضرور ہے۔ تو نے حسین کو ظالم کہا، حالانکہ حسین وہ ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو بچایا۔ تو نے اسلام کے ستونوں کو گرانے کی کوشش کی اور حسین نے انہیں قائم کیا۔ تو نے عورتوں کو بے پردہ کر کے دربار میں کھڑا کیا ہے۔ یہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے۔ جلد تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اے لوگو، میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، یہ سب کیا دھرا ابن زیاد کا ہے۔ اے یزید ابن زیاد، تیرا ہی کارندہ ہے۔ تیری مرضی اور تیرے حکم کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ ان الفاظ کے بعد ساری دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شام کے لوگ رونے لگے اور یزید اپنی رسوائی دیکھ کر بولا، اے زینب، اگر تم چاہو تو میں تمہیں واپس مدینہ بھیج دوں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب شہید ہو گئے تو دشمنوں نے ان کے خیموں کو جلایا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کربلا سے کوفہ اور پھر شام یعنی دمشق لے گئے۔ یہ قافلہ بہت دکھ اور تکلیف میں تھا۔ بچے پیاسے اور بھوکے تھے، عورتیں زخمی تھیں اور امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام سجاد بیمار تھے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بی بی زینب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور جہاں جہاں قافلہ کو لے جایا گیا وہاں لوگوں کے سامنے حق بات کہی۔
जब काफिला को कैदी बनाकर कूफा लाया गया तो लोग जमा हुए। कुछ लोग रोते थे, लेकिन कुछ लोग यजीद के डर से खामोश थे। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने खड़े होकर एक खुतबा दिया। उन्होंने कहा, ऐ कूफा वालो, तुमने हुसैन को बुलाकर धोखा दिया। तुमने उनसे वादे तोड़े और फिर उन पर तलवारें चलाईं। तुम्हारी आंखों के सामने नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। याद रखो, ये जुल्म यजीद और उसके साथियों ने किया और ये अल्लाह के नबी की औलाद पर जुल्म हुआ है। इस खुतबे ने लोगों के दिल हिला दिए। कूफा के लोग अपने गुनाह पर रो पड़े और समझ गए कि उन्होंने इमाम हुसैन के साथ गलत किया। फिर काफिला को दमिश्क ले जाया गया। यजीद अपने बड़े दरबार में फख्र से बैठा था। वो चाहता था कि सब लोग देखें कि उसने नवासाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया, लेकिन अल्लाह ने यजीद की साजिश को उलट दिया। जब काफिला यजीद के दरबार में आया तो यजीद ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखो, ये है हुसैन का अंजाम। उस वक्त बीबी ज़ैनब खड़ी हुई। उन्होंने बगैर खौफ के कहा, ऐ यजीद, तो ये समझता है कि हम कैदी बनकर जलील हो गए हैं? नहीं, हमें जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत मिली है। हुसैन का खून रायगा नहीं जाएगा। तूने नवासाए रसूल को कत्ल किया है। लोग जान लेंगे कि हुसैन हक पर थे और तू बातिल पर। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की आवाज ने पूरे दरबार को हिला दिया। यजीद खुद शर्मिंदा हो गया और लोगों के दिल बदल गए। सबको समझ आया कि असल में जालिम यजीद है और मजलूम हुसैन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस वक्त जवान थे, लेकिन सख्त बीमार थे। दुश्मन ने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था। यजीद चाहता था कि लोग इमाम सज्जाद को कमजोर और मजबूर देखें, लेकिन इमाम सज्जाद ने अपनी बीमारी के बावजूद हक बात कहने में कमी न की। यजीद के दरबार में इमाम सज्जाद ने एक खुतबा दिया। उन्होंने अपना तारुफ कराया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हैं। मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। लोग हैरान रह गए कि ये तो नबी का खानदान है और यजीद ने इन पर जुल्म किया है। करबला के बाद बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने अपनी जिंदगियां इसी मकसद पर लगा दी कि इमाम हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। जहां भी गए लोगों को बताया कि इमाम हुसैन ने क्यों कुर्बानी दी। बताया कि इमाम हुसैन ने सिर्फ अपनी जान के लिए जंग नहीं की, बल्कि दीन को बचाने के लिए शहीद हुए। बताया कि अगर हुसैन कुर्बानी न देते तो इस्लाम यजीद जैसे जालिम के कब्जे में आ जाता और सब कुछ बदल जाता। बीबी ज़ैनब ने औरतों और बच्चों को सब्र की तालीम दी। इमाम सज्जाद ने दुआओं और इबादत के जरिए दीन को जिंदा रखा। उनकी दुआओं को आज हम सहीफ़ा सज्जादिया के नाम से जानते हैं। लोगों की आंखें खुल गईं। वक्त गुजरता गया और बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद के बयानात ने लोगों को हकीकत बताई। लोग यजीद से नफरत करने लगे और इमाम हुसैन की अज़मत को पहचानने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे आलम इस्लाम में ये बात फैल गई कि इमाम हुसैन हक पर थे और यजीद जालिम है। बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने सब मुश्किलात झील कर इमाम हुसैन के मिशन को जिंदा रखा। अगर वो खामोश रहते तो शायद लोग कभी ना जान पाते कि करबला में क्या हुआ था, लेकिन उनकी कुर्बानियों और बहादुरी ने हक को रोशन कर दिया। जब इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हो गए तो काफिला असीरान करबला को कूफा लाया गया। वहां के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। ये वही कूफी थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखकर बुलाया था और फिर यजीद के खौफ और दुनिया की लालच में इमाम को तन्हा छोड़ दिया। जब उन्होंने बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना, इमाम सज्जाद और बाकी बच्चों को जंजीरों में देखा तो उनके दिल कांप गए। औरतें अपने दुपट्टे नोचकर रोने लगी, मर्द अपने सर पीटने लगे। वो चीख चीख कर कहने लगे, अब हमें
खुदा कभी भी माफ नहीं करेगा। हाय अफसोस, हमने ये क्या कर दिया। नबी के नवासे को हमने कत्ल होने दिया, हमने जुल्म में यजीद का साथ दिया। हाय अफसोस। बीबी ज़ैनब ने इन रोने वालों को देखकर एक अल्फाज कहा कि अब रोने का क्या फायदा। जब मेरे भाई हुसैन को बुलाया था तब तुम लोगों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया। अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। ये अल्फाज सुनकर कूफा के लोग शर्मिंदगी से झुक गए। उन पर एक जबरदस्त नदामत तारी हो गई। कूफा में कुछ लोगों ने अपने जुर्म पर इतना पछताया कि उन्होंने एक तहरीक शुरू की जिसे तव्वाबीन कहा जाता है। तव्वाब का मतलब है तौबा करने वाले। ये वो लोग थे जो रो रो कर कहने लगे, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमने हुसैन का साथ न दिया। अब हम अल्लाह से तौबा करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करके इस गुनाह का कफारा देंगे। इनमें से बहुत से लोग यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और जंगों में अपनी जानें कुर्बान करके नवासे रसूल की बेवफाई का बदला चुकाने की कोशिश की। जब काफिला शाम पहुंचा और बीबी ज़ैनब व इमाम सज्जाद ने यजीद के दरबार में खुतबे दिए तो वहां के लोग भी चौंक गए। पहले तो यजीद ने झूठ फैलाया हुआ था कि हुसैन बागी थे, लेकिन जब बीबी ज़ैनब ने कहा कि ये शहीद नवासे रसूल हैं और इमाम सज्जाद ने अपना तारुफ करवाया तो लोग रोने लगे और यजीद पर लानत करने लगे। औरतें चीखने लगीं, बच्चे रोने लगे, बूढ़े अपने चेहरों पर खाक डालने लगे। वो सब कहने लगे, हाय अफसोस, हमने रसूल के खानदान के साथ जुल्म देखा और कुछ न किया। यजीद खुद भी इस शोर और रोने धोने से परेशान हो गया। उसने कैदियों को रिहा करने पर मजबूर हो गया। यूं करबला के बाद जहां बीबी ज़ैनब व इमाम सज्जाद ने हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, वहां अवाम के दिल भी बदलने लगे। कूफा के लोग, शाम के लोग और बाकी दुनिया के लोग समझ गए कि असल में हुसैन हक पर थे और यजीद बातिल पर। इसीलिए आज तक जब मुहर्रम आता है तो दुनिया भर के लोग रोते हैं, याद करते हैं और पछताते हैं कि काश हम उस वक्त हुसैन के साथ होते।